Hello, I'm Kanchan. I'm an occupational therapist. In my previous video, I discussed about the symptoms of autism. Now, in this video, I want to give some suggestions about activities what parents can do with their children at home. So it's like a home program for the parents with their children. So fine motor activities, why it is called as fine motor activities? Because the activities which we do with our hands. So with this activity, we can improve the eye contact of the children, their sitting tolerance, coordination of both the hands. It is also called as bilateral coordination. So you can make busy to your child by giving these activities. First, I want to say about activity of dropping beads in a bottle. Drop beads in a bottle. If you have beads, colorful beads at home, so ask your child to drop beads in a bottle. Don't give the whole basket or whole beads at a time in the child's hand. You make him to sit opposite to you, face to face sitting. Then give one bead to your child's hand and give it to your eye level. So while taking the bead, child must look at you and he will look at you during taking that bead. So this way we can improve their eye contact with us. So give one bead color one by one, and also tell them the colors. Name the color of the bead. So continuously you can give red color beads like 1, 2, 3, 4, 5 color beads. Then green color beads. So this way you can count the beads and also you can say the color of the beads to your child. So this is also a multitask activities you can say. So concept formation, number concept formation, then color concept formation. So it's a way of perceptual activity to the child. Next activity is opening and closing of the bottle cap. So opening bottle cap and then closing of the bottle cap, it improves the fine motor activity, and also the child is holding a bottle with one hand and he is opening the cap with other hand. So it is cylindrical grasp. It will improve the cylindrical grasp of the child. Opening and closing in clockwise, anti-clockwise direction. So he will get about the clockwise direction and anti-clockwise direction. This way we can say them about the directions also, clockwise, anti-clockwise. And we are improving the cylindrical grasp. This is the other thing. The next, if the child is having tactile issues in the sense, tactile issues is regarding the touch sensitivity. If he is having any irritation with by getting touched with wet things, yeah, he gets irritated by touching curd or play dough या फिर आटा. So you can give your child a small quantity of atta in one bowl, add little water and salt, and ask your child to mix this. You also do the same thing with your child. So he will enjoy, he or she will enjoy, oh my mama is also doing. So with mother, the child will enjoy this activity. So with this activity he is doing his movement. He is mixing the atta. So this is fine motor activity. Then he is touching the wet thing, yeah, sticky things. So it will reduce his tactile issue. एंड इससे उसका टैक्टाइल इशू कम होगा. और फिर फाइन फिंगर के मूवमेंट्स हो रहे हैं तो फाइन मोटर स्किल भी इम्प्रूव हो रहा है उसका. एंड द थिंग इज द बच्चा मम्मी के साथ एंजॉय कर रहा है वो एक्टिविटी. मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पहले हमें अपने बच्चे के कंफर्ट जोन में जाके उसके साथ एक्टिविटी स्टार्ट करना है, क्योंकि सडनली अगर हम चाहे तो बच्चा हमारे हिसाब से एक्टिविटी नहीं करेगा. हम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते हैं. तो हमारे जो बच्चे का कंफर्ट जोन है, उसे क्या एक्टिविटी पसंद है,
वो कहाँ पे बैठना चाह रहा है, वो चेयर पे बैठना चाह रहा है, स्टूल पे बैठना चाह रहा है, नीचे फ्लोर पे बैठना चाह रहा है, उसके कंफर्ट जोन में जाके हमें ये एक्टिविटी स्टार्ट करना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, जैसे प्रोग्रेस होगा हमारे एक्टिविटीज़ में, तो चाइल्ड विल बिकम टू योर कंफर्ट जोन। फिर वो आपका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना शुरू करेगा, फिर वो आपकी बात सुनेगा, आपके कमांड्स को फॉलो करेगा। तो इस तरह पहले हमें बच्चे का इंटरेस्ट देख के, उसका क्या इंटरेस्ट का एक्टिविटी है, उसे क्या पसंद है, वो एक्टिविटीज से स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट एक्टिविटी आप दे सकते हो, अगर आपका बच्चा राइटिंग करता है, पेंसिल पकड़ता है, राइटिंग करता है, या डॉट टू डॉट ज्वाइनिंग कर रहा है, या अल्फाबेट्स लिख रहा है, कलरिंग कर रहा है, या सीजर यूज कर रहा है, इफ ही इज एबल टू यूज सीजर, तो आप उसको सीजर से पेपर कटिंग करने के लिए दे सकते हो। आप छोटा छोटा स्ट्रिप्स ले लो, पेपर्स को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में टेयर करो, और वो छोटे स्ट्रिप्स पे कलर मार्कर से उस पर लाइन्स ड्रॉ करो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। फिर आप उसे उस लाइन के ऊपर कट करने के लिए बोलिए। फर्स्ट सीजर कटिंग के लिए हमारे बच्चे को क्या कॉन्सेप्ट आना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपन एंड क्लोज द सीजर, दिस मोमेंट ही शुड नो फर्स्ट। तो उसके लिए आप पेपर ऐसा पकड़ के उसे कट करने के लिए बोलेंगे, स्मॉल स्मॉल पीसेस में, छोटा छोटा स्ट्रिप्स। सो द फर्स्ट मोमेंट इज ओपन एंड कट, ओपन एंड कट, दिस मोमेंट। अगर ये आपका बच्चे का ये लेवल है, तो फिर आप उसको एक पेपर पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दीजिए। बट इसके लिए आपको कलरफुल मार्कर्स यूज करना है, रेड कलर का मार्कर या ग्रीन कलर का मार्कर, जिससे वो अट्रैक्टिव रहे, उस अट्रैक्टिव दिखे उसे। और देन आस्क, फिर उसे आप उस लाइन पे कट करने के लिए बोलिए। तो उसमें वो कंटिन्यूअली कट करेगा, उसके लिए उसे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, वो लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वहाँ उसे कोऑर्डिनेशन का जरूरत है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन का जरूरत है, उस लाइन को उसको फॉलो करना है, तो उसी पे उसको कॉन्सेंट्रेट करना है। इससे हम हमारे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है इस एक्टिविटी में। देन इट इज अ बायलैटरल हैंड एक्टिविटी, एक हाथ में पेपर पकड़ रहा है, एक हाथ से सीजर से वो कट कर रहा है, बायलैटरल हैंड एक्टिविटी। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा अभी अभी पेंसिल होल्ड करना सीखा है, तो आप उसे जंबो क्रेयॉन दो, उसके हाथ में जंबो क्रेयॉन दो, या फिर मार्कर यूज करो, मार्कर विथ वाइट बोर्ड या वाइट स्लेट आप यूज कर सकते हो। अगर आप जंबो क्रेयॉन यूज कर रहे हो, जंबो क्रेयॉन यूज कर रहे हो, तो एक ड्राइंग बुक ले लो, प्लेन ड्राइंग बुक, उसमें 2 डॉट्स ड्रॉ करो, एक 2 कॉर्नर्स पे। Then you hold your child's hand, fingers, and you make him to draw the line from one point to other point, and you tell that time ki start, continue, stop, start, stop. For standing line, start, stop. So because हमारे बच्चों को start उनको पता है, they knows the starting point, but end कहाँ करना है वो उन्हें नहीं पता होता है। तो आपको स्टार्ट एंड स्टॉप, ये 2 पॉइंट्स उनको बोलना है, ताकि वो वहाँ पे स्टॉप हो सके। स्टॉप क्यों बोलना है, क्यों, अगर आप स्टॉप बोलोगे तो ही उसके हैंड में कंट्रोल मूवमेंट आएगा, उसके जो मूवमेंट्स है उसको हमको कंट्रोल करना है, क्योंकि वाइल राइटिंग वी कंट्रोल अवर हैंड। अगर हम जब 1 2 3 4 नंबर्स लिख रहे हैं या अल्फाबेट्स लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, हमारे हैंड में कंट्रोल रहता है, हमको पता है फिगर कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, ए ऐसा लिखना है, यहाँ पे एंड करना है। हमारे बच्चों को वो नहीं पता रहता है, वो लिमिट नहीं पता रहता है उनको, इसलिए वो हैंड मूवमेंट्स कंट्रोल करने के लिए यू शुड टेल देम स्टार्ट, स्टॉप। आप डॉट टू डॉट ज्वाइन कराइए, फिर आप डॉट्स डॉट डॉट डॉट्स ड्रॉ करके ट्रेसिंग करने लगाइए बच्चे को। अल्फाबेट्स पे ट्रेसिंग करा सकते हो आप, नंबर्स पे ट्रेसिंग करा सकते हो, ज्योमेट्रिकल शेप्स पे ट्रेसिंग करा सकते हो, ज्योमेट्रिकल शेप्स को पॉइंट से आप ड्रॉ कर लो, उसके ऊपर ट्रेसिंग करवाइए। फिर वो ट्रेसिंग होने के बाद आप आपका ही हाथ पकड़ के, आपको उसका हाथ पकड़ना है और आपके सपोर्ट के साथ में उसको उसके अंदर कलरिंग करवाइए, ताकि उसका हैंड मूवमेंट कंट्रोल में रहे। और कलरिंग कभी भी या तो हॉरिजॉन्टल वे में रहना या फिर वर्टिकल वे में रहना, दिस वे, तो ही उनको हैंड कंट्रोल बराबर आएगा। और फिर कलरिंग बराबर होता है जब आप हॉरिजॉन्टल वे में करते हो या वर्टिकल वे में करते हो, तो वो डायग्राम में कलरिंग बराबर फिल होता है। So this is the way to make them to color in the shapes and within the boundary line. It is very important कि वो within the boundary line रहना है।
तो ही वो बच्चे में हमारे बच्चे को वो समझ में आता है. ओके. एंड नेक्स्ट थिंग इज you can give writing, pull and push. Okay. अदर थिंग इज फाइन मोटर एक्टिविटी में अगर आपके बच्चे का अगर ग्रिप स्ट्रांग नहीं है, पेंसिल ग्रिप या क्रेयॉन ग्रिप सफिशिएंट नहीं है होल्ड करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, तो आप उसको कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस या स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ हम बोल सकते हैं. जैसे आप कपड़ों का क्लिप्स यूज़ कर सकते हो. एक बास्केट दे दीजिए, कपड़ों का क्लिप्स उसको यहाँ पे ऐसा प्रेस करके यहाँ पे फिक्स करना है. तो आप उसमें डिफरेंट कलर्स के क्लिप्स यूज़ कर सकते हो. ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है. तो वो राइट हैंड से उसको प्रेस करके फिक्स करना है, फिर लेफ्ट हैंड से एक के बाद निकाल प्रेस करके रिमूव करना है. तो ये प्रेस कर रहा है तो यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो रहा है. और उसको यहाँ पे फिक्स भी करना है. तो यहाँ पे वो दो एक्टिविटी करना है उसको. एक तो उसको यहाँ पे प्रेस करना है और फिर फिक्स करना है. सो आप उसे एक राइट हैंड से फिक्स करने के लिए बोलिए, लेफ्ट हैंड से रिमूव करने के लिए बोलिए. तो यहाँ पे दोनों हैंड का फंक्शन कर रहा है हमारा आपका बच्चा. फिर नेक्स्ट एक्टिविटी हम दे सकते हैं जैसे प्ले डो या फिर हम उसे कहते हैं थेरापुट्टी भी कहते हैं, जो स्टेशनरी शॉप में अवेलेबल रहता है. तो आप वो प्ले डो बच्चे को दे के उसका छोटा छोटा पीसेस दीजिए आप उसके हाथ में. और वो छोटे छोटे पीसेस को उसको ऐसे दिस वे उसको छोटा छोटा बॉल्स बनाने के लिए बोलिए. या फिर हम ऐसे बोलते हैं छोटे भीम का लड्डू, मेक छोटा भीम का लड्डू बनाओ. आप उससे उसको छोटा छोटा ऐसे रोल करो. ये फिंगर मूवमेंट्स कर रहा है आपका बच्चा. जब भी वो रोल कर रहा है वो फिंगर मूवमेंट्स कर रहा है. जब ये ऐसे रोल कर रहा है तो इसमें दोनों हाथ का यूज हो रहा है उसमें. तो इसमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है, टू हैंड्स का कोऑर्डिनेशन हो रहा है या फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जिसमें उसका ट्राइपॉड ग्रिप इम्प्रूव होगा. तो आप जब ये एक्टिविटी आप करा रहे हो तो टेबल पे या स्टूल पे आप एक पैटर्न ड्रॉ कर लो, एक फ्लावर का पैटर्न ड्रॉ कर लो. छोटे छोटे बॉल्स बना के उसके ऊपर वो लगाने के लिए बोलिए तो उससे फ्लावर ड्रॉ होगा. आप डायरेक्टली अल्फ़ाबेट्स का कॉन्सेप्ट अगर उसे पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आपका बच्चा उस लेवल पे है कि ही नाउ इज राइटिंग अल्फ़ाबेट्स, तो आप प्ले डो से भी उसको अल्फ़ाबेट्स के शेप्स या वो कॉन्सेप्ट आप उसको सिखा सकते हैं. आप प्ले डो से ऐसा उसको थोड़ा ऐसा सिलेंड्रिकल करके आप उस पर ऐसा ट्रेस करने के लिए बोलिए तो अल्फ़ाबेट्स बनाएगा, उससे नंबर्स बनाएगा, डिफरेंट पैटर्न्स बनाएगा. डिफरेंट पैटर्न जैसे फ्लावर्स हो गया, बलून हो गया, आप वो बनाने को बोलिए. तो एक प्ले डो स्टिकी रहता है, स्टिकी है, फिर उसमें एक थोड़ा हार्ड रहेगा या सॉफ्ट रहेगा. तो डिफरेंट उसका इलास्टिसिटी भी रहेगी उसमें. वो खींचने में थोड़ा उसको बच्चे को थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा. तो उसमें वो प्रोप्रियोसेप्टिव भी आ रहा है, वो उसको पुल कर रहा है. फिर उसमें स्टिकीनेस है, फिर थोड़ा एंड्योरेंस भी रहेगा उसमें. हार्ड है, सॉफ्ट है. तो उसको आस्क योर चाइल्ड टू प्रेस द प्ले डो. तो वो उसको प्रेस भी कर रहा है. तो स्टिकी थिंग है तो उसका टैक्टाइल इशू उसमें रिड्यूस होगा. फिर वो उसको पुल कर रहा है तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन या प्रोप्रियोसेप्टिव स्किल वो यूज़ कर रहा है. और फिर वो जब रोल कर रहा है या छोटा छोटा बॉल्स बना रहा है तो उसमें फाइन मोटर स्किल्स आ गया. तो इसमें भी ये भी मल्टीटास्किंग एक्टिविटी है. आई हैंड कोऑर्डिनेशन, coordination of both the hands, then he is sitting at one place, then tactile issue, then proprioceptive issue. इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज उसमें कर रहा है हमारा बच्चा. तो दिस इज द प्ले डो एक्टिविटी. फाइन और मोटर एक्टिविटीज़ में आप बहुत कुछ है हमारे पास कराने के लिए. आप एक जगह बैठा के बच्चों को रिंग टॉवर रिंग्स अरेंज करने के लिए बोलिए. उस पर सेम एक्टिविटी जैसे अभी आपने प्ले डो लिया है, सेम वे में आप उसी प्ले डो को थोड़ा ऐसे लंबा करके आप उस पर मार्बल्स फिक्स कर सकते हैं. मार्बल्स या पेबल्स उसमें ऐसा पेस्ट करो 1 by 1 पूरा 10 मार्बल्स फिक्स करके. देन यू आस्क योर चाइल्ड टू रिमूव द मार्बल्स और पेबल्स 1 by 1 एंड ड्रॉप इन अ कंटेनर. सो he will hold the pebble and he will remove it. So this is also the tripod grip and he is removing. फिर clay sticky है तो उसमें भी उसके बहुत सारे टास्क बहुत सारे इश्यूज उसमें सॉल्व हो रहे हैं, बच्चे के रिड्यूस हो रहे हैं.
तो दिस इज ऑल्सो फाइन मोटर एक्टिविटी। नेक्स्ट रिंग टॉवर। रिंग टॉवर आप अरेंज करने के लिए बोलिए, आप पूरे रिंग्स निकाल के रख दो और फिर उसे एक एक रिंग लगाने के लिए बोलिए। पहले अगर वो इनिशिएट नहीं करा तो आप उसका हाथ पकड़ के इनिशिएट करवाइए, सबसे बड़ा फिर उसे छोटा फिर उसे छोटा। इसमें उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पता चलेगा, साइज का कॉन्सेप्ट आएगा, छोटा बड़ा। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लगाते हैं, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर और थोड़ा छोटा, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर उसमें कलर्स रहते हैं तो आप उसमें कलर कॉन्सेप्ट भी सिखा सकते हैं बच्चे को रिंग टॉवर एक्टिविटी में। नेक्स्ट आप पूरा फिनिश होने के बाद में, पूरे रिंग्स अरेंज करने के बाद में आप उसी में उसको काउंटिंग सिखाइए, 1 2 3 4 टोटल काउंट। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट डे जब आप रिपीट करोगे तो यू विल ऑब्जर्व द योर चाइल्ड इज काउंटिंग बाय हिमसेल्फ 1 2 3 4 फ्रॉम अपवर्ड्स या फिर फ्रॉम डाउनवर्ड्स। So these are the fine motor activities. Next is gross motor activities. Gross motor activities means जिसमें हमारा पूरा बॉडी का यूज हो रहा है, the whole body, we are using the whole body for gross motor. जैसे jumping, cycling, skipping, obstacle walking, then bear walk, wheelbarrow walk, walking on hands. These are gross motor activities. Then pushing and pulling activities, pushing table या pulling the table, these are all gross motor activities. If your child is not able to jump, जैसे बच्चों में बहुत, our most of the kids they are having low muscle tone, means muscle power थोड़ा कम रहता है, muscle tone जो है नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है, तो वो बच्चे थोड़ा जंपिंग लेट शुरू करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दैट मच पावर फॉर जंपिंग। मसल पावर कम होता है, मसल टोन हाइपो होता है, लेस देन नॉर्मल मसल टोन। सो इफ यू वांट टू मेक योर चाइल्ड टू जंप, सो फॉर दिस ट्रेनिंग यू कैन गिव योर चाइल्ड जंपिंग फ्रॉम द लास्ट। अगर आपके पास घर में स्टेयर्स है या स्टेप्स है तो जो लास्ट स्टेप्स है आप उस पे से उसको जंपिंग करना सिखाइए, या उसको पकड़ के उसके अंडर आर्म्स में पकड़ के आप उसको जंप करवाइए, बिकॉज ही डजंट नो द मूवमेंट ऑफ जंपिंग। कुछ बच्चों में क्या होता है, वेस्टिबुलर इश्यूज होते हैं। वेस्टिबुलर इश्यूज मीन्स जैसे बैलेंसिंग या कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है हमारे बच्चों में। बहुत से बच्चे डरते हैं, जंपिंग से डरते हैं। क्यों? जंप करने के टाइम पे हमारे पैर ऊपर उठते हैं एक साथ, तो most of the children they are having fear of lifting legs off the ground. कुछ बच्चों को इवन डोर क्रॉस करने में भी डर होता है। तो these are the vestibular issues. Vestibular issues जो बच्चों में होते हैं उनको ये डर होता है। बहुत से बच्चों को स्विंग पे डर रहता है, बहुत से बच्चों को स्लाइडिंग पे डर होता है। तो it is called as hypersensitive to vestibular stimulation. उस वजह से भी बहुत से बच्चे जंपिंग नहीं करते हैं डर से। तो आप उन्हें होल्ड करके करवाइए, आप उनको जंपिंग करवाइए, बिकॉज जंपिंग इज द बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी। उसमें पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो रहा है, और जब आप जंप करते हैं तो पैरों पे बैलेंस करना है हमको। तो ये बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एंड द स्पेस, हियर कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बोन्स बॉडी एंड द स्पेस, ये हो रहा है। तो जंपिंग में वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन भी, वेस्टिबुलर स्किल भी इंप्रूव होता है और प्रोप्रियोसेप्टिव स्किल भी इंप्रूव होता है। प्रोप्रियोसेप्शन का मीनिंग है अवेयरनेस या नॉलेज ऑफ वंस बोन बॉडी इन द स्पेस, सेंस ऑफ पोजीशन ऑफ आवर बॉडी इन द स्पेस। एक जगह पे अपना बॉडी कैसा है, मैं कैसी हूँ, मैं खड़ी हूँ या मैं बैठी हूँ या मैं चल रही हूँ, ये जो हमको सेंस रहता है हमारे पोजीशन का, हमारे बॉडी मूवमेंट का, इसे कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। तो हमारे ऑटिज्म बच्चों में प्रोप्रियोसेप्टिव स्किल्स, उनको प्रोप्रियोसेप्टिव स्किल्स का भी इश्यू रहता है। एक तो वेस्टिबुलर इश्यूज रहते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज रहते हैं और टैक्टाइल इश्यूज रहते हैं। ये 3 मेन इश्यूज तो हमारे बच्चों में रहते ही हैं। तो प्रोप्रियोसेप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक प्रोप्रियोसेप्शन मैंने आपको बताया, जो फिंगर से जो प्ले डो पुल कर रहा है बच्चा, दैट इज ऑल्सो प्रोप्रियोसेप्टिव।
proprioceptive for the fingers. Okay, then other proprioceptive skills are pushing table या pulling the table, push the door, open the door. These are also the proprioceptive activities. आप घर में हाउस क्लीन करते हो, क्योंकि अभी हम लोग घर में ही रह रहे हैं, लॉकडाउन के समय में हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम भी घर में रह रहे हैं, बच्चे भी घर में रह रहे हैं, तो जब भी हम घर का काम कर रहे हैं तो उसमें हमें अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, तो साथ ही उसका एक्टिविटी भी होगा और बच्चा बिजी भी रहेगा, इन अ पर्पसफुल वे, बिकॉज इट्स अ पर्पसफुल एक्टिविटी फॉर योर चाइल्ड. तो आप जब भी घर हाउस क्लीन कर रहे हो, घर में साफ सफाई कर रहे हो, यू आस्क योर चाइल्ड टू पुश द टेबल या पुश द स्टूल, जो भी हेवी थिंग्स है जिसमें उसे उसका स्ट्रेंथ लगाना है, उसे उसकी ताकत लगाना है, अपने फोर्स के साथ में उसको पुश करना है टेबल को. सो दिस इज अ प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी. वो स्ट्रेंथ लगा रहा है, वो पुश कर रहा है, तो उसमें उसके हैंड्स का मसल बिल्ड हो रहा है. जब वो पुश कर रहा है तो उसके पूरा अपर एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्व हो रहा है, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, फिंगर्स, तो ये पूरे हैंड का एक्सरसाइज हो रहा है फॉर पुशिंग एंड पुलिंग. Door, close the door, open the door. This is also a proprioceptive activity. Then proprioceptive improve करने के लिए आप टग ऑफ वॉर भी खेल सकते हो बच्चे के साथ में. लाइक अगर आपके पास में स्ट्रेचिंग बैंड्स है या इलास्टिक बैंड्स है, तो आप एक तरफ से आप स्ट्रेच करो, दूसरी तरफ से आपका बच्चा स्ट्रेच करेगा, एक साइड से बच्चा रहेगा, दूसरी तरफ से मम्मी या पापा कोई रहेंगे, बच्चे के साथ में भी कोई रहना है, बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू पुल, हाउ टू होल्ड एंड हाउ टू पुल बैक. तो एक पर्सन को बच्चे के साथ भी रहना है. अगर वो भी नहीं है इलास्टिक बैंड्स, तो आप बड़ा स्कार्फ यूज कर लो या चुन्नी यूज कर लो, तो एक साइड से एक पर्सन रहेगा, बच्चे की तरफ से एक पर्सन रहेगा, टग ऑफ वॉर के लिए आप उसको, वो पुल कर रहा है, जब वो पुल कर रहा है तो वो प्रोप्रियोसेप्टिव हो रहा है. पुल करने के टाइम पे उसको अपने आप को भी बैलेंस करना है, अपना बॉडी पोस्चर उसको बैलेंस करना है, उसे नीचे गिरना नहीं है, अपने आप को संभालना है. तो इट इज अ प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन. देन नेक्स्ट प्रोप्रियोसेप्टिव इज वेस्टिबुलर हो गया, प्रोप्रियोसेप्टिव हो गया. नेक्स्ट वी कैन डू wheelbarrow walk. हाँ, नेक्स्ट प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी इज एनिमल वॉक. एनिमल वॉक जैसे दोनों हाथ पे और दोनों पैर पे चलने लगाना है. बच्चे एंजॉय करते हैं ये सारे एक्टिविटीज, बट उन्हें एंजॉय करवाने के लिए हमें भी उनके साथ करना चाहिए. मम्मी कर लिए या पापा कर लिए तो बच्चे और भी एंजॉय करते हैं. व्हीलबैरो वॉकिंग करवाइए, हैंड पे वॉकिंग करवाइए. बच्चे के पैर अगर आप ऊपर पकड़ लेते हो तो पूरा बॉडी वेट हैंड्स पे आ जाएगा. आप उसको आगे चलने लगाइए. इफ ही इज नॉट, ही कैनॉट टॉलरेट वेट ऑन द हैंड्स, तो उसके लिए फर्स्ट आप, अगर आपके पास थेरेपी बॉल है घर में, या फिर थेरेपी बॉल नहीं है तो सोफा रहता है हमारे पास या बेंच रहता है. सोफा अगर है या बेड कॉट जो है, कॉट है, उसके एज पे उसको लिटाइए. उल्टा लिटाना है, एज पे उसको लिटा के उसके जो हैंड्स है नीचे जमीन पे आने का है, और उसका जो बॉडी है, पैर जो है कॉट के ऊपर रहेगा, हैंड्स जो है सामने रहेंगे. तो हैंड्स नीचे आएंगे फ्लोर पे, तो पूरा बॉडी वेट उसका हैंड पे आएगा. जब वो हैंड पे वेट डाल रहा है तो इनिशियली वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वेट बेयर करेगा. एक 2-3 दिन के बाद या 1 वीक के बाद में ही विल बी कंफर्टेबल टू पुट वेट ऑन बोथ द हैंड्स. जब वो हैंड्स पे वेट डाल रहा है तो आप उसको वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हो, जैसे ट्रांसफरिंग ऑफ बॉल्स फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर. आप उसके सामने रख दो कलरफुल प्लास्टिक की बॉल्स, तो एक हाथ पे बच्चा एक हाथ पे वेट बेयर करेगा और दूसरे हाथ से वो एक्टिविटी करेगा. वहाँ पे वो हैंड्स में वेट शिफ्टिंग भी कर सकता है, तो अलाउ ही वो कर सकता है, कोई बात नहीं है. हमारा मेन पर्पस है कि हैंड्स पे वेट आना है. एक हाथ पे वेट डाल रहा है, दूसरे हाथ से एक्टिविटी कर रहा है, तो वो एक हाथ पे वेट बैलेंस कर रहा है, वहाँ पे भी उसे बैलेंस करना है. ये है प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी. इसमें उसका जॉइंट कॉम्प्रेशन भी हो रहा है. जॉइंट कॉम्प्रेशन हो रहा है. हमारे बहुत से बच्चों को जॉइंट कॉम्प्रेशन का भी जरूरत पड़ता है जहाँ पे हाइपोटोन रहता है, स्पेशली डाउन सिंड्रोम बच्चों में लो मसल टोन रहता है, तो जॉइंट कॉम्प्रेशन देना पड़ता है. तो इस एक्टिविटी में बच्चे को जॉइंट कॉम्प्रेशन भी हो रहा है एंड इज बेयरिंग वेट ऑन बोथ द हैंड्स. और वो उल्टे पोजीशन में है, हाथ उसके नीचे है, पैर ऊपर है, और वो प्रोन पोजीशन में है, स्टमक पे है.
तो इट्स अ वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन भी हो गया वो। तो इसमें भी बहुत सारे एक्टिविटीज एट ए टाइम हो रहे हैं। जब वो अच्छे से बेयर वेट कर सकता है दोनों हाथ पे, उसके बाद आप उसको वॉकिंग ऑन द हैंड स्टार्ट कर सकते हो। सो व्हेन ही इज कंफर्टेबल फॉर पुटिंग हैंड्स ऑन बोथ द for putting weights on both the hands, then let him walk on the hands, hold his legs upwards, so automatically the whole body weight will come on both the hands, and ask him to walk. Initially ask him to walk for 2 to 3 steps, then gradually increase the steps, gradually increase the distance in the room. The second way is you can give bear walk या फिर frog jump, क्रैब वॉक, इस तरह आप प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज दे सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट इज ये प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज में हम हमारे बच्चों का मसल पावर इंप्रूव कर रहे हैं। उसमें उनका मसल पावर इंप्रूव होता है, उसमें उनको जॉइंट कॉम्प्रेशंस मिलते हैं, और उसमें हैंड्स और लेग्स का भी यूज हो रहा है। तो बायलैटरल हैंड एक्टिविटी, हैंड टू लेग, bilateral hand coordination, hand to leg coordination, bilateral leg coordination, the whole body उसमें use हो रहा है। तो coordination of the whole body is there, and even okay, the next thing is activities on the ball. If you have therapy ball, generally अभी तो मोस्टली बहुत से ऑटिज्म बच्चों के घर में थेरेपी बॉल रहता ही है, पेरेंट्स लेते हैं थेरेपी बॉल। तो इफ़ यू हैव थेरेपी बॉल, लेट योर चाइल्ड लाई प्रोन ऑन द थेरेपी बॉल। आप उसको स्टमक के ऊपर लिटाइए, बॉल पे उल्टा लिटाइए। आप उसके लेग्स पकड़ के उसे टिल्ट कीजिए बॉल को, या रोटेट कीजिए बॉल को फ्रंट बैक 10 टाइम्स, साइड टू साइड 10 टाइम्स, देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स ऐसा आप टिल्ट करो बॉल को। फिर स्लोली ask your child to touch to the floor, so he will touch to floor, then gradually he will put weight on the hands. फिर सेम पोजीशन में आप उसको एक्टिविटी करवाइए। फिर लेट हिम सिट ऑन द बॉल, आप उसको बिठाइए बॉल पे, और जो उसके हैंड्स है उसके साइड में रखिए, उसके एल्बो जॉइंट में आप पकड़ के उसको बाउंसिंग करवाइए। तो जब बाउंसिंग करवा रहे हैं तो एल्बो जॉइंट पे भी प्रेशर आ रहा है, तो वहाँ पे भी उसको जॉइंट कॉम्प्रेशन मिल रहा है। हिप जॉइंट पे भी कॉम्प्रेशन आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ जॉइंट कॉम्प्रेशन। तो आप उसको बाउंसिंग करवाना है, फिर आप उसको पकड़ के फ्रंट बैक टिल्ट करना है, साइड टू साइड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट करना है। जब आप उसको फ्रंट बैक टिल्ट करोगे इन सिटिंग पोजिशन, सिटिंग ऑन द बॉल, वो टाइम पे जब आप उसको बैक टिल्ट करोगे तो ही विल ट्राई टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ही विल ट्राई टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ टू, ताकि अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, वो आप कोशिश करेगा अपने आप को संभालने की, ताकि वो गिरे ना, वो साइड में ना गिरे, वो पीछे ना गिरे, वो अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा। और करते ही है बच्चे, आफ्टर सम टाइम, इनिशियली नहीं करेगा बट कुछ दिनों के बाद में वो करेगा। सो इट इज अ वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन। वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन इज very important and very necessary to our autistic children. वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन से बच्चों में स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है, सिटिंग टॉलरेंस, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, दे स्टार्ट्स टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, दे स्टार्ट्स टू लिसन यू, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको लर्न करते हैं, आपके फेशियल फीचर्स को भी लर्न करते हैं। ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन से। आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, बायलैटरल हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। सो बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन कराने में। देन नेक्स्ट इज कुछ ऐसे फाइन मोटर एक्टिविटीज़ है जो हम बच्चों को, जैसे बिंदीज, आप एक स्टूल पे या टेबल पे, आपके पास बड़ा बिंदी है, टेबल स्टूल नहीं तो आप एक वॉल पे, जो वॉल आप ज़्यादा यूज़ में नहीं है, या फिर डोर के पीछे में, डोर के बैक साइड में आप स्टिकर्स या बिंदीज बच्चे को लगाने के लिए बोलिए। ज़्यादा नहीं देना है, ओनली 5 देना है। जो भी वर्क आप दे रहे हो बच्चों को एक लिमिट में देना है।
आप उसको पहले ही बोलना है कि तुमको इतना ही एक्टिविटी करना है, इतना ही काउंट करना है, 1 to 5 टाइम्स ही करना है, तो ही वो करेगा। अगर आप उसको अनलिमिटेड देते जाओगे तो नेक्स्ट टाइम आपको कोऑपरेट नहीं करेगा एंड ही विल बिकम इरिटेट, ही विल नॉट कोऑपरेट विथ यू। अगर हम उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो फिर उसमें हमारे बच्चों को बिहेवियर इश्यूज आते हैं जो हम नहीं चाहते। बिहेवियर इश्यूज नहीं आना है हमारे बच्चों में, तो बिहेवियर इश्यूज नहीं आना है, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करना है, उसने एक्टिविटी भी करना है पर्पसफुल वे में, तो हमें एक्टिविटीज़ उसको लिमिटेड ही देना है, उतने ही लिमिट में देना है। आप कभी भी कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो, हाँ ठीक है बेटा ये आपको 1 to 5 टाइम्स ही करना है। अब बिंदीज भी या स्टिकर्स भी आप उसको पेस्टिंग करवा रहे हो तो 5 टाइम्स ही करवाइए, 5 ही करवाइए। लगाने के लिए बोलिए, फिर उसको रिमूव करने के लिए बोलिए। अगर आप वॉल पे कराते हो या डोर के बैक साइड में कराते हो तो ये और भी यूजफुल रहेगा, बिकॉज यूर चाइल्ड इज लिफ्टिंग हिज हैंड। डोर पे करा रहे हो, थोड़ा ऊपर है स्पेस, तो वो उसका हैंड लिफ्ट कर रहा है, उसका हैंड लिफ्ट कर रहा है तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव हो रहा है। हैंड लिफ्ट कर रहा है मतलब वो बेयर कर रहा है, वो जो पेन होता है, उन लोगों को एक पेन रहता है, मसल पावर उतना नहीं है उन लोगों में, मसल स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, तो उनको एक पेन रहता है हैंड लिफ्ट करने में। तो हैंड लिफ्टिंग का एक्सरसाइज हमको ज़्यादा करवाना है बच्चों में, तो बेटर है आप स्टूल या टेबल पे देने के बजाय आप उसको वो सेम एक्टिविटी आप डोर पे करवाइए, बैक साइड पे, या फिर कोई वॉल पे करवाइए। आयरन का कपबोर्ड है तो आयरन के कपबोर्ड पे करवाइए। तो हैंड लिफ्ट करना है, हैंड लिफ्ट करके उसको स्टिकर्स को पेस्ट करना है, फिर 1 by 1 निकालना है। अगर आपके पास वेट कफ है, रिस्ट कफ है, अगर ½ kg का नहीं भी है तो आप सैंड ले लेके एक ½ kg का पाउच आप बना ले सकते हो, दो पाउच बना लिए, तो जब वो बच्चे को आप करा रहे हो तो उसको रिस्ट में वो टाई कर दीजिए, रिस्ट में बांध दीजिए वो वेट कफ बांध के आप उसको वो स्टिकर्स लगाने के लिए बोलिए, फिर निकालने के लिए बोलिए। तो आपका बच्चा हाथ ऊपर उठा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी उठा रहा है, वो ग्रेविटी के ऊपर उठा रहा है और फिर वेट के साथ में कर रहा है, तो विद रेजिस्टेंस। इसके थ्रू हम हमारे बच्चों का मसल पावर इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हमको कहाँ हेल्प होती है? राइटिंग के टाइम पे हेल्प होती है। राइटिंग के टाइम पे बच्चों हमें नॉर्मल राइटिंग हम कैसे करते हैं, हाथ हमारा उठता है, हाथ में मूवमेंट्स आते हैं, ट्राइपॉड ग्रिप रहना है, वहाँ पे मूवमेंट रहना है, उसमें रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे ये एक्टिविटी का बहुत हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो आप रिस्ट कफ बांध के वो एक्टिविटी आप कराइए। रिस्ट कफ बांध के और भी हम बहुत कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं। आपके पास रिंग टॉवर है, एक हाथ आप दोनों हाथ में रिस्ट कफ बांध दो, बच्चे के आमने सामने बैठिए, आप 2 हाथ में रिस्ट कफ बांध दो उसके, एक हाथ में आप रिंग टॉवर पकड़िए, एक हाथ में कोई स्टिक रॉड बड़ा सा डंडा पकड़िए। अब अपने बच्चे को बोलिए कि एक एक रिंग्स यहाँ से निकाल के इधर डालना है, तो he will remove with right hand, then he will shift it to left hand, then he will keep in the rod। तो इसमें उसका बायलैटरल हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है, लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर कर रहा है, फिर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर कर रहा है। जिसमें उसको आप हैंड डोमिनेंस भी बता सकते हो कि ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, बट एक बार में एक ही हैंड को आपको बताना है, तो से ओनली राइट हैंड, डोंट प्रोनाउंस द वर्ड लेफ्ट या लेफ्ट हैंड, डोंट अटर दैट वर्ड, एक ही वर्ड आप अटर करो, दिस इज योर राइट हैंड, रिमूव विथ राइट हैंड। पूरे रिंग्स वो राइट हैंड से निकाल रहा है, राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर कर रहा है, फिर रॉड में डाल रहा है, पूरा इधर रॉड में आने के बाद में फिर उसको रिवर्स करने लगाइए विथ वेट कफ। तो इसमें वो एक्टिविटी कर रहा है, बायलैटरल हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, विथ वेट कफ वो उठा रहा है, प्रोप्रियोसेप्टिव हो रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बायलैटरल हैंड कोऑर्डिनेशन, सिटिंग टॉलरेंस, कंसंट्रेशन एंड इज फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें बहुत कुछ आप इम्प्रूव कर रहे हो बच्चों का। और एक लाइक हाँ ओके, नाउ विदाउट वेट कफ द ग्रॉस मोटर एक्टिविटी आई वांट टू से कि थ्रो एंड कैच द बॉल। थ्रो एंड कैच द बॉल क्यों ज़रूरी है? अगर आपका बच्चा खड़ा नहीं रह रहा है, यहाँ वहाँ भागते रहता है, तो आप उसको बिठाइए, नीचे बिठाइए, एक पर्सन उसके पीछे बैठ सकता है, एक पर्सन उसके सामने बैठना है। आप उसका हाथ पकड़ के बड़ा बॉल जो हमारा हॉकी बॉल होता है, हॉकी बॉल या फुटबॉल, हल्का सा, ज़्यादा वेट नहीं रहना उसका, आप उसके हाथ से पकड़वा के आपको थ्रो करना है, उसके दोनों हाथ ऐसा पकड़ के थ्रो करवाना है।
सामने जो भी पर्सन रहेगा वो कैच करेगा। फिर सामने से जब बॉल उसके पास आएगा तो आपका बच्चा उसको कैच करना है। आपको उसको सिखाना है, क्योंकि इनिशियली उसे नहीं पता है कि कैसा थ्रोइंग करना है, कैसा कैचिंग करना है। थ्रो का मतलब भी नहीं पता होता है हमारे बच्चों को, व्हाट इज थ्रो एंड व्हाट इज कैच। तो हम एक्शन से उनको बताते हैं। यहाँ पे आप उसका कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर रहे हो, आप उसका वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर रहे हो। थ्रोइंग विद एक्शन, एक्शन से वर्ड को एक्शन से आप रिलेट कर रहे हो। यहाँ पे उसका वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो रहा है। ऐसा आपको हर एक्टिविटी में वोकैबुलरी इम्प्रूव करना है बच्चे का। आप जो भी एक्टिविटी करा रहे हो आप वहाँ पे वर्ड्स भी यूज करो बच्चों के लिए। तो इस वजह से हम बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका वोकैबुलरी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बॉल थ्रोइंग देन कैचिंग, आप उसका हाथ पकड़ के करवा रहे हो, इसमें शोल्डर्स पूरा हैंड्स अप हो रहे हैं, इसमें शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, फिंगर मूवमेंट्स, रिस्ट मूवमेंट पूरा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट। It is also proprioceptive and is sitting at one place, is looking in front, looking to the front person and is concentrating on throwing ball या coming ball, is concentrating to catch the ball. तो throwing and catching ball ये करवाना है only 1 to 10 times। फिर वही सेम एक्टिविटी सामने में जो भी पर्सन है वो थ्रो करेगा तो आप एक राइट हैंड से उसको हिट करने के लिए बोलना है, या तो आप उसका हाथ पकड़ के हिट करवाइए 10 टाइम्स, ओनली 10 टाइम्स। ओके, नाउ हिट बेटा। अब राइट हैंड से 10 बार मारो बॉल को तो वो राइट हैंड से मारेगा। यहाँ पे उसको आप हैंड डोमिनेंस भी बता रहे हो, एक हाथ से करना है 10 बार होने के बाद में फिर लेफ्ट हैंड से 10 टाइम्स कराना है। तो उसको कंटिन्यूअसली करना है, हाथ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओ अभी मुझे पहले ये हाथ से करना है, 10 बार होने के बाद फिर ये हाथ से हिट करना है, फिर अल्टरनेट हैंड से करना है 1 2 3 4 अल्टरनेट हैंड्स, अल्टरनेट राइट लेफ्ट। तो आप उसमें लेफ्ट राइट का हैंड डोमिनेंस आप उसको सिखा रहे हो, उसमें साइमल्टेनियसली आप उसको बायलैटरल हैंड कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है उसका। अगर बच्चा एक जगह खड़ा रह रहा है तो सेम एक्टिविटी आप उसको स्टैंडिंग में कराइए, ताकि उसका स्टैंडिंग टॉलरेंस भी इम्प्रूव हो, एक जगह खड़े रहना सीखे। आप एक जगह खड़े करवाने के लिए बच्चे को ये भी कर सकते हैं कि आप नीचे एक सर्कल ड्रॉ कर लो, या फिर एक रिंग, बड़ा रिंग अगर आपके पास है तो रिंग रख लो, रिंग के बीच में उसको आप खड़े करो तो रिंग से बाहर, उसकी बाउंड्री के बाहर वो नहीं जाएगा। आप ये भी कर सकते हो। ये हो गया। फिर दिस आर द ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़। फिर आप उसको साइकिलिंग करवाइए। साइकिलिंग में अगर वो इज़ नॉट एबल टू पेडल तो आप वो उसके पैरों को पेडल से ट्राई कर दो, चुन्नी से या दुपट्टे से, स्कार्फ से। अब आप उसके पैरों को मूव कीजिए, क्योंकि उसके पैरों में वो पावर नहीं है, मसल पावर कम है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है पावर में। तो आप शुरू में आप उसको पेडलिंग करवाइए, कुछ दिन के बाद में या एक हफ्ते के बाद में वो खुद पेडलिंग करेगा। तो दिस इज अ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा, पूरे पैरों का एक्सरसाइज हो रहा, पूरे पैर के मसल्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे। तो इट्स अ फिजिकल एक्सरसाइज। साइकिलिंग, ओके। देन यू कैन आस्क योर चाइल्ड टू किक द बॉल, बॉल को किक करना है। ओके, दिस इज ऑल्सो फिजिकल एक्सरसाइज। बॉल को किक कर रहा है तो बॉल को उसको देखना भी है, जब बॉल उसके पास आ रहा है तो उसे देखना है, देख के उसको हिट करना है। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन, ऑब्जेक्ट टू फुट, देन आई टू फुट कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे 2-3 कोऑर्डिनेशन करना है उसको। फिर उसको स्पेस का भी कोऑर्डिनेशन आना है, उसके अपने बॉडी का स्पेस में कोऑर्डिनेशन। जब वो हिट कर रहा है तो वो मूव भी होगा थोड़ा। सो हिटिंग द बॉल, टू हिट द बॉल अल्टरनेटिवली, राइट हैंड देन लेफ्ट हैंड, या फिर पहले राइट हैंड से मारो 10 बार, फिर लेफ्ट हैंड से मारो 10 बार बॉल को, ऐसे। नेक्स्ट आप वही सेम बॉल पे बॉल के साथ में आप 1 फुट बैलेंस करवा सकते हैं आपके बच्चे को। 1 फुट बैलेंस, आस्क हिम टू कीप 1 leg on the ball, so he will bear weight on the 1 leg and he will move the ball with other leg। तो जब वो मूव कर रहा है दूसरे लेग से तो एक पैर पे वेट आ रहा है, उसको वहाँ पे बैलेंस करना है, खुद को बैलेंस करना है एक पैर पे, बिकॉज ही इज मूविंग द बॉल विथ अदर लेग। तो ये 1 फुट बैलेंसिंग हो गया। दिस इज द थिंग्स, ओके। नेक्स्ट इज cycling, okay. Swimming is also the best exercise, but nowadays you cannot take your child for swimming. Okay. हाँ, एक वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए यू कैन आस्क योर चाइल्ड
to recognize all the vegetables what are available at home. वेजिटेबल्स उनको रिकॉग्निशन दीजिए, जिससे आप उनका कॉग्निशन डेवलप कर सकते हो. कॉग्निशन डेवलप करने के लिए एजुकेशनल वे में, इन एजुकेशनल वे वी हैव टू इम्प्रूव देयर कॉग्निशन लेवल. आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, जो भी प्रैक्टिकल है या बुक्स में पिक्चर्स है या आपके पास विजुअल कार्ड्स है या जो भी है आपके पास में, उसके हेल्प से आपको वो करवाना है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, देन ज्योमेट्रिकल शेप्स. आप चाहे तो घर में बड़े बड़े चार्ट बना लीजिए जो आपके बच्चे को हमेशा हेल्प होगी. आप सेम पिक्चर, बड़े बड़े पिक्चर्स में अगर आप ड्रॉ करके एक चार्ट में वेजिटेबल्स के चार्ट बना लो, ब्रिंजॉल, टोमेटो, कैरेट, कैप्सिकम, आप कलरफुल करके वो चार्ट वहाँ लगा दो, आपका बच्चा वो बहुत पसंद करेगा और वो जल्दी पिकअप करेगा. ओके, दिस इज ब्रिंजॉल, दिस इज पोटैटो, दिस इज टोमेटो, दिस इज कैप्सिकम. कलरफुल रहेगा वो. इसी वे में आप उसको अल्फ़ाबेट सिखाइए, नंबर सिखाइए, काउंटिंग ऑफ नंबर्स, 1 to 10 काउंटिंग ऑफ नंबर्स सिखाइए. अल्फ़ाबेट्स आप उसको सिखा सकते हैं. सो दीज आर लाइक अ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. So in such a way we can improve the child's cognitive and perceptual skills. और एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों में, अगर हमारा बच्चा 2 साल का या 2.5 साल का या 3 साल का हो गया, 2.5 years, 3 years का, ऑलरेडी he reached 2 years या 2.5 years or 3 years, so you have to start toilet training and potty training to your child. हमें डायपर यूज़ नहीं करना है. डायपर हम हमारे कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर आप बाहर जा रहे हो, बच्चे को कहीं बाहर लेके जा रहे हो तो आप डायपर यूज़ करो, पर घर में डायपर नहीं यूज़ करना है. ये मैं आपके लिए, आपके बच्चे के ट्रेनिंग के लिए बता रही हूँ. ओके, कंफर्ट है, बट अगर आप हमेशा डायपर में रखोगे बच्चों को तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वो कब टॉयलेट कर रहा है, कब पॉटी को जा रहा है. वो सेंसेशन नहीं रहता है उन लोगों को. डायपर में वो सेंसेशन उनको नहीं रहता है. तो बेटर है कि आप घर में डायपर ना यूज़ करें. टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए आप एवरी हाफ एन आवर या 1 hour, बारिश के सीज़न में ज़्यादा जाते हैं बच्चे टॉयलेट को, तो हाफ एन आवर में लेके जाइए या 1 hour में लेके जाइए. लेके जाने के टाइम पे बच्चे को बोलिए, ओके टाइम फॉर टॉयलेट, टाइम फॉर टॉयलेट. फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम लेके बोलो, ओके कम नाउ, टाइम फॉर टॉयलेट. इंडिकेट करो आप ऐसे, टाइम फॉर टॉयलेट बोल के बच्चे को लेकर जाओ. इसी वे में आप उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देना है एवरी हाफ एन आवर में. पॉटी ट्रेनिंग के लिए हमको क्या करना है? पॉटी ट्रेनिंग के लिए आप सुबह उठता है बच्चा, तब आप उसको थोड़ा गुनगुना पानी, वार्म वाटर, यू गिव हिम वार्म वाटर टू ड्रिंक, 1 glass वार्म वाटर. एंड उसके बाद में आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर let him walk या let him jump on the floor, or if you have trampoline at home, let him jump on the trampoline and take him to the potty seat या toilet bathroom and make him to sit there. शुरू में नहीं करेगा. कुछ बच्चे डरते हैं, कुछ बच्चे टॉयलेट या पॉटी सीट से भी डरते हैं. हमारे बच्चों को वो डर भी रहता है. आपको वहाँ लेके जाना है, आप वहाँ लेके जाइए, उसको बिठाइए थोड़ी देर. अगर वहाँ नहीं बैठ रहा है तो उसका पसंद का कोई अगर एक्टिविटी है आपके पास, अगर वो कोई सॉन्ग कोई पसंद करता है, कोई राइम गाता पसंद करता है, तो आप उसको राइम सुनाइए वहाँ पे, बट बिठाइए उसको वहाँ पे. उसको पता होना चाहिए कि पॉटी के लिए मुझे यहाँ बैठना है, टॉयलेट के लिए मुझे बाथरूम में आना है, बाथरूम में ही करना है. उसको आप माइंड डाइवर्ट कीजिए वो टाइम पे. आप उसका जो डर है वो हमें भगाना है. आप उसको लेके जाके वहाँ बिठाइए, कुछ उसका एक्टिविटी है वो भी दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम बाथरूम में एक्टिविटी कैसे दें. आप रिंग टॉवर दे दो, बॉल्स दे दो, जो उसको पसंद करता है. अगर वो टाइम पे वो कुछ वीडियो देखना चाह रहा है तो वो आप दिखाइए उसको, लेकिन उसको वहाँ बैठना है. हमारे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टॉयलेट में जब तक रहेंगे, पॉटी सीट पे जब तक बैठेंगे नहीं करेंगे, जैसे ही वहाँ से हिलेंगे वो नीचे कर देंगे जमीन. कोई बात नहीं अगर वैसा करता है तो, लेकिन आपको जो ये ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू करना है. एक दिन हमारा बच्चा पॉटी ट्रेनिंग जरूर कंप्लीट करेगा, वो पॉटी ट्रेंड जरूर होगा, वो एक दिन जरूर आएगा. हमें हमारी जो कोशिश है, वी हैव टू कीप आवर ट्रेनिंग, कीप आवर ट्राइंग दैट वी हैव टू कीप इट. वी शुड नॉट गिव अप. one day our child will definitely he will become potty trained and toilet trained. It depends on us. ये हम पे डिपेंड करता है, हम हमारे बच्चे के साथ कितना इन्वॉल्व है, उसको कितना स्टडी कर रहे हैं, उसको कितना पहचानते हैं, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, उसका इंटरेस्ट, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस, ये सब
हमें पता होता है, मम्मी को सबसे ज़्यादा पसंद पता होता है, मदर्स को सबसे ज़्यादा पता होता है उसके बच्चा का इंटरेस्ट क्या है, उसका लाइक्स क्या है, डिसलाइक, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हमें हमारे बच्चों को ये सब ट्रेनिंग देना है। टॉयलेट ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग, देन फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, टैक्टाइल स्किल्स जो मैंने आपको बताया है, वेस्टिबुलर, हाँ ओके, और क्या याद आया था मुझे, ओके, सो यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, वन डे वी विल बी सक्सेसफुल, ओके। सो ये है मेरे पेरेंट्स के लिए, दिस इज द, ये छोटा सा एक गाइडेंस है पेरेंट्स के लिए। सो होप है आपको मेरा ये गाइडेंस यूजफुल रहेगा, इट विल बी यूजफुल फॉर द पेरेंट्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। होप है आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत हेल्प होगी मैंने जो एक्टिविटीज़ आपको बताए हैं। ओके देन आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू।